کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی، یہاں سے سیدھا باورچی خانے میں جا اور رات کے کھانے کی تیاری کر۔ روشانی جو کہ صوفے پر بیٹھنے لگی تھی کہ شمالہ کی کرخت آواز سن کر دوبارہ کھڑی ہوگی۔ ماں، وہ سیدھا کولی سے ہوتی ہوئی یہاں 4 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچی ہے، زیغم نے کشمالہ کو دیکھتے ہوئے بتایا، کیونکہ وہ صبح آفس سے ضروری کام نپٹانے کے بعد روشانی کو موبائل پر کال کر کے اپنا پروگرام اسے بتا چکا تھا۔ روشانی نے گھر آ کر یونیفارم چینج کیا تھا اور حویلی آنے کے لیے بیگ تیار کیا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے راستے میں کھایا تھا۔ تو زیادہ میرے سامنے اس کی وکالت مت کیا کر زیغم، وہ اپنے سسرال آئی ہے، بارات میں نہیں، اور کھانا بنا کر اس کی ہڈیاں نہیں گھس جائیں گی۔ کشمالہ غصے میں زیغم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے یوں بات پر بیوی کی وکالت کرتا دیکھ کشمالہ کا غصہ آ جا رہا تھا۔ میں بنا لیتی ہوں کھانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روشانہ آہستہ آواز میں بولی۔ زیغم نے افسوس بھری نظر کشمالہ پر ڈالی۔ مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے تجھے، 3-4 طرح کے کھانے بنا لینا اور ساتھ میں میٹھا بھی۔ بابا سائیں کا پرہیزی کھانا بنے گا الگ سے۔ شانوں سے صرف مدد لینا، سارا کام خود ہی کرنا، تاکہ تیرے دادا سسر اور سسر کو تیرے آنے کی خوشی ہو کہ ان کی بہو آئی ہے۔ کشمالہ کڑے تیوروں کے ساتھ روشانی کو ہدایت دیتی ہوئی بولی، جس پر روشانی جی کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اب اسے چادر اتار کر منہ ہاتھ دھو کر سیدھا کچن کا رخ کرنا تھا، شاید اس کی ساس اس سے اسی طرح خوش ہو جاتی۔ میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، آپ بھی ریسٹ کریں اب۔ زیغم کشمالہ کے رویے پر اچھا خاصا بددل ہوا تھا۔ وہ بیٹھ سے اٹھنے لگا، تبھی کشمالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے پاس بٹھا لیا۔ آرام ہی کرنا ہے تجھے تو یہیں میری نظروں کے سامنے کر لے، اس طرح تجھے دیکھ کر میری طبیعت بحال ہوتی رہے گی۔ کشمالہ اب زیغم کو دیکھتی ہوئی محبت سے بولی تو وہ وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ رات کی تاریکی میں کمرے میں موجود بالکنی میں کھڑی ہوئی وہ دور سے نظر آتے اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ تیز رفتار میں ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوا جب اس کے بدن سے ٹکراتی تو پورے دن کی تھکاوٹ کا احساس کہیں ختم ہو جاتا۔ اس حویلی میں بسنے والے لوگ بھی روشانی کو ان پہاڑوں کی مانند لگتے، سخت دل۔ کہنے کو تو شمشیر جوتوئی فروز جوتوئی اس کے سگے نانا اور ماموں تھے، مگر ان دونوں نے ایک بار بھی اسے رباب کی بیٹی سمجھ کر پیار سے گلے نہیں لگایا تھا۔ اس کو یہاں پر زیغم کی بیوی کی حیثیت سے عزت دی جا رہی تھی، نہ جانے وہ کبھی بھی اس کو رباب کی بیٹی کی حیثیت سے پیار کریں گے بھی کہ نہیں۔ یہ خلا روشانی کے دل میں موجود تھا۔ وہ اداسی سے سوچتی ہوئی اپنے کمرے کو دیکھ کر بالکنی سے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آج رات کھانے کے ٹیبل پر کشمالہ سب کے سامنے فروز جوتوئی سے کہہ چکی تھی کہ جب تک اس کا بیٹا حویلی میں چند دن موجود ہے، وہ کوئی اور کمرے میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے۔ روشانی نے جھکا ہوا پلیٹ سے سر اٹھا کر سب کی طرف دیکھا تو کسی نے بھی کشمال کی بات پر اعتراض نہیں کیا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ کشمالہ کی طبیعت ناساز تھی اور وہ کافی حساس ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد سب کو قہوہ دے کر وہ زیغم کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ بیگ سے اپنا موبائل نکالا تو اس پر زرین کی مسڈ کال شور ہو رہی تھی۔ زرین سے بات کر کے اسے زادے کی طبیعت خرابی کا معلوم ہوا۔ بات کرنے کے بعد وہ اپنا موبائل واپس آف کر کے بیگ میں رکھ چکی تھی۔ روشانی نہیں چاہتی تھی اس کے موبائل کو دیکھ کر دوبارہ کوئی فساد اٹھے۔ اس کے کالے جانے پر بھی شمشیر جوتوئی اور فیروز جوتوئی نے کافی اعتراضات اٹھائے۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی کروٹیں بدل رہی تھی، مگر اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لیٹے کر زیغم کی کمی کا احساس شدت سے ہوا۔ ایک ماہ میں ہی وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ زیغم اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا تو یہ احساس اسے افسردہ کرنے لگا۔ روشانی دوبارہ جا کر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے تب اس کے پشت پر کھڑے ہوئے وجود نے روشانی کو اپنے مضبوط بازوؤں میں گھیر لیا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ وہ دیکھے بغیر ہی زیغم کے لمس کو، اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے زیغم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بولی جو اس کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے بری طرح یاد کر رہا ہے۔ زیغم اپنے ہونٹ روشانی کے کان کے قریب لا کر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ روشانی نے زیغم کے بازو میں قید اس کو مڑ کر دیکھا تو زیغم نے آہستگی سے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے۔ خیر ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، آپ کون سے دور ہیں جو میں آپ کو یاد کروں گی؟ 2 کمرے کو چھوڑ کر تیسرے کمرے میں ہی تو آپ موجود تھے۔ روشانی نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے زیغم سے بولی تو زیغم اس کے گرد سے اپنے بازوؤں کو ہٹا کر گھورتا ہوا روشانی کو دیکھنے لگا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ زیغم روشانی کو بولتا ہوا واپس جانے کے لیے مڑا۔ سائیں پلیز میری بات تو سنیں، مذاق کر رہی تھی میں، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ کتنا زیادہ مس کر رہی تھی میں آپ کو۔ وہ خفا ہو کر واپس جانے کے لیے مڑا تو روشانی جلدی سے اس کے سامنے آتی ہوئی بولی اور جھٹ سے زیغم کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تاکہ وہ ناراضگی بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ اب تو میں بھی یہاں تب رکوں گا جب تم مجھے اچھی طرح احساس دلاؤ گے کہ تم مجھے واقعی مس کر رہی تھی۔ زیغم اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو چھپا کر روشانی کو دیکھ کر بولا۔ وہ خود بھلا کون سا یہاں سے جانے والا تھا؟ شہر میں تو وہ آفس کے آنے کے بعد ہر وقت روشانی کے آس پاس موجود رہتا۔ آج اس نے صحیح سے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ زیغم کی بات سن کر روشانی اس کے سینے سے سر اٹھا کر زیغم کو گھورنے لگی۔ آپ کو خود احساس ہونا چاہیے اپنی بیوی کی فیلنگز کا، آپ کیا بیوی خود احساس کرواتی ہوئی اچھی لگے گی؟ روشانی بولتے ہوئے نازک سے ہاتھ کا مکہ بنا کر زیغم کے سینے پر مارا۔ اس کی ادا پر زیغم دل کھول کر مسکرایا۔
वो रुशाने को अपने बाजू में भरता हुआ बेड तक लाया। हफ्ते भर से रुशाने के मिड टर्म चल रहे थे, जिसकी वजह से वो शराफत का मुजाहरा करता हुआ उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मामी को क्या कहा आपने? उसने रुशाने को बेड पर बिठाया। तभी रुशाने बेसाख्ता जैगम से पूछने लगी। वो सो चुकी हैं, उनकी फिक्र नहीं करो। जैगम रुशाना को बताने के बाद उस पर झुकता हुआ उसके बाल खोलने लगा। अगर वो सुबह जाग गई तो बहुत नाराज़ होंगी। जैगम रुशाना के गले में पड़ी हुई चैन उतारने लगा तो रुशानी अपना खदशा जाहिर करते हुए बोली, मुझसे नाराज़ होंगी, वो मेरा मसला है, तुम परेशान मत हो। मैंने पूरे हफ्ते तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। जैगम रुशाना के चेहरे पर परेशानी के साथ देखता हुआ उसे रिलैक्स करता हुआ बोला। वो जानता था और रुशाने उसकी माँ से बहुत डरती है, लेकिन इस वक्त वो कोई दूसरी बात नहीं सोचना चाहता था। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुशाने के होंठों पर अपने होंठ रख चुका था, जिस पर रुशाने ने अपनी आंखें बंद की हुई जैगम की सांसों को अपनी सांसों में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। जैगम उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर रुशाने की सांसों की खुशबू से अपनी सांसों को महका रहा था। अब वो रुशाने के होंठों को आज़ाद करता हुआ बेहद करीब से रुशाने का चेहरा देख रहा था, जो इस वक्त अपनी आंखें बंद किए लेटी थी। एक माँ के अंदर वो इस हद तक रुशाने का आदी हो चुका था कि उसकी कुर्बत जैगम को अपने अंदर तक सुकून का एहसास बख्शती थी। अपने चेहरे पर जख्म की नज़रों की तपिश से रुशाने ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। वो उस पर झुका हुआ गौर से रुशाने को देख रहा था। रुशाने ने अपना हाथ जख्म के गाल पर रखा, जिसे थाम कर रुशाने की हथेली को चूमने लगा। माँ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाती हैं तुम्हारे साथ, तुम प्लीज़ महसूस मत किया करो उनकी बातों को। वक्त गुजरने के साथ साथ उनका रवैया ठीक हो जाएगा। जख्म रुशाने का हाथ थाम कर अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रखता हुआ बोला, मैं आपके खातिर बर्दाश्त कर सकती हूँ साया, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। रुशाने के बोलने पर जैकब ने प्यार भरी मुहर उसके माथे पर सजाई। रुशाने का हाथ थामा हुआ हाथ अपने गिर्द हायल करता हुआ वो उसकी गर्दन पर झुक चुका था। वो अपनी सांसों को रुशाने के जिस्म की खुशबू से महका रहा था। हफ्ते भर की दूरी का एहसास वो अपने और उसके मिलाप से ज़ाहिर करने के मूड में था। कभी कभी वो उसकी दीवान की रफ्तगी पर बौखला सी जाती थी, जैसे इस वक्त वो उसकी गर्दन पर झुका हुआ उसके होश उड़ा रहा था। रुशाने ने आहिस्ता से अपनी नीम व आंखें खोली और कमरे की छत को खुद देखने लगी। वो अपना दूसरा हाथ भी जैकब का गिर्द हायल कर चुकी थी। बेसाख्ता रुशाने की नज़र सामने बालकनी में मौजूद खिड़की पर पड़ी। हैरत और खौफ के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो तैमूर खान ही था जो कि इस वक्त बालकनी में खड़ा हुआ खिड़की से अंदर का मंजर गजबनाक नज़रों से देख रहा था। वो चंद दिन पहले इसके फ्लैट में भी आया था। रुशाने इसको कैसे भूल गई थी। उसने जल्दी से जैकम के गिर्द से अपने दोनों हाथ हटाए। रुशाने को लगा इसका दिल अभी बंद हो जाएगा। साईं प्लीज़ पीछे हटिए, रुशाने लड़ती हुई आवाज़ में खिड़की की तरफ देखकर जैकम से बोली। जैकम रुशाने की बात का नोटिस लिए बगैर उसके बाल में फंसाए हुए अपने हाथ से रुशाने का मुंह आहिस्तगी से बंद कर चुका था। तैमूर खान खूनख्वार नज़रों से रुशाने को देख रहा था, जबकि रुशाने ने आहिस्ता आहिस्ता नफीम सर हिलाने लगे। साईं प्लीज़, रुशाने जख्म का हाथ अपने होंठों से हटाकर एक बार फिर बोली। शर्मिंदगी के मारे वो अपने दोनों हाथ जख्म के सीने पर रखकर उसे पीछे हटाने लगे, मगर जख्म इस वक्त किसी और ही मूड में था। वो रुशाने के दोनों हाथ अपने सीने से तकिए पर रखता हुआ उसकी दोनों कलाइयाँ थाम चुका था। रुशाने की बेबसी इंतहा को छूने लगी। उसका दिल चाहा कि वह जैकम को तैमूर खान की यहाँ मौजूदगी के बारे में आगाह कर दे। अगर वह ऐसा करती तो तैमूर खान के इस हवेली से आज रात जिंदा बचकर जाना नामुमकिन होता। अगर उसे सरदार इस्माइल खान जरीन का ख्याल ना होता तो वह ऐसा ही करती। साईं, जब जैकम उसके गर्दन से थोड़ा नीचे झुका तब रुशाने को रोना आने लगा। उसने अपने हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश की। तैमूर खान खिड़की के शीशे पर अपनी उंगली से क्रॉस का निशान बनाने लगा। सुनाई नहीं दे रहा आपको? कब से बोल रही हूँ कि दूर हो जाएं। रुशाने उसे पीछे धकेलती हुई खुद भी बेड से उठकर बैठ गई। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। तभी वो गुस्से में चीखी थी। जैकब पहले उसे हैरतज़दा होकर देखने लगा, फिर दूसरे ही पल उसके चेहरे के तासुरात गुस्से में तब्दील हुए। वो बेड से उठता हुआ कमरे से बाहर निकलने लगा। रुशाने को मालूम था कि तैमूर भी यहाँ से जा चुका है। वो खुद भी बेड से उठकर जैकब के पास आई। साईं मेरी बात सुने प्लीज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने ऐसा कहा। रुशानी नहीं चाहती थी कि जैकब मुझसे नाराज़ होकर कमरे से जाए, इसलिए वो बात बनाती हुई जैकब से बोली। अभी भी कुछ और भी बोलती जैकब ने उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे धक्का दिया, जिससे रुशानी 2 कदम पीछे हुई। अब न मेरे पीछे आने की ज़रूरत है, न ही मुझसे बात करने की ज़रूरत है। वो सख्त लहजे में रुशानी से बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। रात वाला मंजर बार बार याद करके उसकी आंखों के सामने आकर उसे पागल किए दे रहा था। जब उसे खबर मिली कि जैकब जतोई रुशाने को लेकर आज ही अपनी हवेली पहुंचा है, तो वो रात के पहर रुशाने से मिलने के गर्ज से दुश्मनों की हवेली पहुंचा। बहुत एहतियात के साथ जैकब जतोई के कमरे की बालकनी तक पहुंचा तो उसे अंदर की सूरत हाल का हरगिज अंदाजा नहीं था, मगर वो मंजर देखकर उसकी आंखों से शरारे निकलने लगे। जब तैमूर खान वहां से वापस जाने का इरादा किया, तब तक रुशाने से देख चुकी थी। रुशाने के चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ खौफ भी मौजूद था। तैमूर खान चाहता था रुशाने खुद जैकब को अपने आप से दूर करे, इसलिए न चाहते हुए भी खुद पर जब्त करते हुए वो वहीं खड़ा रहा। वो शर्मिंदा थी, बेबस थी और उसे दूर बना हटा रही थी, मगर वो जख्म जतोई था।
تیمور خان کا کھول کھولنے لگا۔ اس کے خاندان کی لڑکی، جس کی پرورش اس کے ماں باپ نے کی، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کا دشمن۔ بے شک اب وہ رشانے کا شوہر تھا، مگر تیمور خان کا دل چاہا وہ کمرے میں جا کر زخم چتوری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس سے پہلے کہ بات حد سے زیادہ آگے بڑھتی اور شرم کی دیوار قائم نہیں رہتی، تیمور خان وہاں سے چلا آیا۔ رات بھر وہ شراب پیتا رہا تھا، مگر اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب کہ وہ صبح بیدار ہو چکا تھا، دماغ کو کئی طرح کی سوچ منتشر کیے دے رہی تھی۔ شاید اسے سب کچھ بھول جانا چاہیے، مطلب اپنے دشمن کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ رشانے کو یہاں لا کر کیا کرے گا؟ بے شک وہ اس خاندان کی لڑکی تھی، لیکن اب رشانے کا مقدر اس کے دشمنوں کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ اب اسے ساری باتیں فراموش کر کے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تیمور خان کے اندر مثبت سوچوں نے جنم لیا تو اپنے کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا کر رہی ہیں صالح بیوی؟ ملازمہ کو صالح کے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر تیمور خان اسے پوچھنے لگا۔ ابھی کھانا دے کر آئی ہوں، مگر وہ لیٹی ہوئی آرام کر رہی ہیں۔ ملازمہ نے تیمور خان کو بتایا تو تیمور خان نے صالح کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ صالح کے کمرے میں آیا تو صالح آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ محبت حاصل وصول کو سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی خان، وقت تو صالح کے ہاتھ سے کب کا نکل گیا ہے۔ اس نے تمہیں تب سے اپنے دل میں بسایا ہے جب وہ خود اس جذبے سے واقف نہیں تھی۔ صالح کے الفاظ محبت کے اظہار کی صورت یاد کر کے تیمور خان کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اور پھر میں نے رشانے کا نام لے کر یہ تک نہیں سوچا کہ اس لڑکی کا دل کیسے ٹوٹا ہوگا۔ اگر میں اس دن شراب کے نشے میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا تو کبھی بھی سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا۔ تیمور خان دل ہی دل میں اپنے اوپر ملامت کرتا ہوا بیڈ پر صالح کے قریب آ کر بیٹھا۔ رشانے پر نہ ہی وہ کوئی حق رکھتا تھا اور نہ ہی اس کا اختیار تھا، مگر سامنے لیٹے اس وجود کے سارے حقوق اور اختیارات وہ اپنے نام کر چکا تھا، جو کہ اس کی محبت کی دعوے دار بھی تھی۔ تیمور خان گہری نظروں سے صالح کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا اگر آج صالح اسے محبت سے اپنا لے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے ہر برے کام چھوڑ سکتا ہے۔ آج وہ نہ جانے کیوں خود کو بکھرا ہوا اور ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ صالح کے چہرے کے قریب جھک کر اس کے ماتھے پر موجود زخم پر انگلی پھیرنے لگا۔ تب تیمور خان نے اپنے ہونٹ صالح کے ماتھے پر رکھے تو ایک سکون سا سارے ماحول پر طاری ہو گیا۔ یہی عمل اس نے دوبارہ دہرایا، مگر اب کی بار اس نے صالح کے ماتھے کے بجائے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ بخار کی تیزی کافی حد تک کم ہونے کے باوجود وہ کافی نکاہت محسوس کر رہی تھی، اس لیے اپنے ماتھے پر ہونٹوں کی لمس کے احساس سے کوشش کرنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول پائی۔ لیکن جب یہی عمل اس کے ہونٹوں پر دہرایا گیا تو صالح نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ تیمور خان کو اپنے ہونٹوں پر جھکا ہوا دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ تیمور خان کے سینے پر رکھ اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کرنے لگے تھے خان تم میرے ساتھ؟ اس دن مجھے لوٹنے کی کوشش تکمیل تک نہیں پہنچی تو اپنی حوث پوری کرنے کے لیے یوں دن دہاڑے میرے کمرے کے اندر چلے آئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ نکل جاؤ، میں کہتی ہوں نکل جاؤ یہاں سے۔ صالح غصے میں بری طرح ہانپتی ہوئی بولی۔ جو اپنی چیز ہو ان کو لوٹا نہیں جاتا، بس سارے اختیارات حاصل ہونے چاہیے جو کہ نکاح کے بعد مجھے حاصل ہو چکے ہیں۔ اس کمرے میں آنے کی یا تمہیں چھونے کی کسی سے اجازت درکار نہیں ہے مجھے۔ تیمور خان نے بولتے ہوئے صالح کو اپنی باہوں میں بھرنا چاہا تو بدھا کا پیچھے فوراً بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اپنی حد میں رہو خان، میں تمہیں اپنے آپ کو چھونے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ اگر تمہیں ایسی کوئی ضرورت درکار ہے تو بے شک تم اپنی خواہش کے حصول کے لیے کسی دوسری عورت کے پاس جا سکتے ہو۔ صالح تیمور خان کو دیکھا گرراتی ہوئی بولی۔ سوچ لو آج میں کہیں اور چلا گیا تو تم اپنے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد کر دو گے جس کے پاس میں تمہاری ٹھوکر کھا کر جاؤں گا۔ آج خان خود تمہارے پاس آیا ہے، میرے اس بکھرے وجود کو سمیٹ لو، آج مجھے اپنا بنا لو۔ صالح خان تا عمر پھر تمہارا ہی رہے گا، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا تو صالح اس کو دیکھ کر طنزیہ مسکرائی۔ اوہ، تو تم رشانے کی یادوں کو بھلانے کے لیے میرے وجود کا سہارا لے رہے ہو۔ ایک بات میری یاد رکھنا، تم رشانے کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، نہ اس کو حاصل کر سکتے ہو نہ اب مجھے پا سکتے ہیں۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ صالح تڑپ کر بولے تو تیمور خان سے اپنا غصہ کنٹرول کرنا محال ہو گیا۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھ کر صالح کے پاس آیا اور سختی سے اس کے دونوں بازو پکڑے۔ جس سے محبت کا دعویٰ کیا جائے اس کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہیں ہے۔ کہاں گئی اب وہ تمہاری محبت جس کا تم نے مجھ سے میرے سامنے اعتراف کیا تھا؟ تیمور خان صالح کے دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑتا ہوا پوچھنے لگا تو صالح ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کس محبت کی بات کر رہے ہو تم مجھ سے خان؟ اس محبت کی جس کا گلا تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ کر مجھ سے میری ذات کا غرور چھینا؟ وہ محبت تو اسی دن مر چکی تھی جس دن تم نے مجھے طاقت کے نشے میں بری طرح روند ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صالح اپنے بازوؤں سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکتی ہوئی بولی تو وہ شرمندہ ہونے کے بجائے مزید مشتعل ہوا۔ میری محبت اپنے دل سے نکال کر اب کسے اپنے دل میں بسانے کا ارادہ رکھتی ہو تم؟ اس خرم کو، جب بھی دوڑ دوڑ کر اس کے پاس جاتی ہو؟ میں تمہیں کبھی بھی آزاد نہیں کروں گا، چاہے تم کتنے ہی ہاتھ مار لو۔
उस खुर्रम को भी देख लूँगा और अब रुशाने को भी वापस इस हवेली में न लाया तो मेरा नाम तैमूर खान नहीं। अपने आप को ठुकराए जाने पर वो गुस्से में पागल होने लगा, जिस पर वो साले को धमकी देता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया। ये तेरे बाप का घर है जो इतनी देर तक पलंग तोड़ रही है। नाश्ता कौन बनाएगा तेरा ताया? चल उठ और सीधा बावर्ची खाने में जा। रात में ज़ैकम रुशाने से नाराज़ होकर कमरे से गया था तो इस फिक्र में रुशाने को काफ़ी देर बाद नींद आई। उसे मालूम ही नहीं हुआ कब सुबह हुई। कशमाला उसके सर पर आकर खड़ी हुई, इसके साथ साथ उसने ख़ानदान को कोसने लगी। सॉरी मम्मी, मैं बस 2 मिनट में किचन में जाती हूँ। रुशानी बदहवासी में कहती हुई बैठ से उठी। उसकी आंखें अभी भी सही तरह नहीं खुली थी। वो बालों का जोड़ा बनाकर अपने पाँव में स्लीपर्स पहनती हुई वॉशरूम का रुख करने लगी। तभी कशमाला ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। तो महारानी, जो अपने काम पहले करेगी, अपने जो भी काम हो वो बाद में कर। जा पहले सबके लिए नाश्ता बना। कशमाला ने बोलने के साथ ही उसे कमरे के दरवाजे की तरफ जोर से धक्का दिया। उसका सर कमरे के अंदर दाखिल होने वाले के सीने से जोर से टकराया। ज़ैकम ने रुशाने के दोनों बाजुओं को पकड़ कर उसको थामा। अगर इस वक्त इत्तेफाक से कमरे में दाखिल नहीं होता तो रुशाने को बहुत ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा लगता। ज़ैकम से टक्कर होने के बाद अब रुशाने की पूरी आंखें खुल चुकी थी और जहन भी अच्छी तरह बेदार हो चुका था। उसने ज़ैकम के सीने से सर उठाकर उसे देखा, जो अफसोस और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ सामने खड़ी कशमाला को देख रहा था। क्या समझ रखा है आपने इसको? ये किसी कमीन की औलाद नहीं है जो आपने इसके साथ ऐसा रवैया रखा हुआ है। क्या बिगाड़ा इसने आपका? क्यों रहम नहीं आता आपको उस पर? खुदा का वास्ता है माँ, थोड़ा तरस खा ले इस पर। कशमाला का रुशाने के साथ सलूक देखकर उससे ना सिर्फ कशमाला से नाराज़ हुआ था बल्कि कशमाला पर बिगड़ता हुआ बोला, जिस पर कशमाला को भी ज़हम पर गुस्सा आया। इस बज़ात के पीछे तो मुझसे ज़ुबान चला रहा है। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने इसको? यही तो बोला है जाकर सबके लिए नाश्ता बना। रात से तो बिस्तर पर पड़ी है और कितना आराम करेगी। आमतौर पर ज़ैकम को गुस्से में देखकर कशमाला खामोश हो जाया करती थी, मगर इस वक्त वो ज़ैकम से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोली क्योंकि इसका बेटा रुबाब की बेटी के सामने उसकी बातें सुना रहा था। अगर आपने इसके साथ यही सलूक करना है तो ठीक है, मैं आज इसको अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। ये बीवी है मेरी, आप इसके साथ नौकरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक करेंगी तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ज़ैकम रुशाने के बाजू छोड़कर कशमाला से बोला। वैसे ही ज़ैकम और कशमाला की आवाज़ें सुनकर फिरोज जुतई ज़ैकम के कमरे में दाखिल हुआ। 4 दिन से तुम बुखार में पड़ रही हो तो तुम्हें अपनी आखिरी याद आ रही थी। अभी थोड़ा बहुत बुखार के कम हुआ तुम्हारा, वापस तुम अपनी औकात में आ गई। सुबह होते ही लड़ाई झगड़े चीखो पुकार। मैं पूछता हूँ आखिर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है? फिरोज तो एक कमरे में आने के साथ ही डायरेक्ट कशमाला पर बुरी तरह चीखा, जिस पर ज़ैकम खामोश खड़ा था जबकि रुशाने बिल्कुल सहम गई। मुझ पर फटकार मत बरसाओ सुबह सुबह साईं, इस जोरू के ग़ुलाम को भी समझाओ जिसकी बीवी को नाश्ता बनाने के लिए क्या बोल दिया। मुझे यहाँ से जाने की धमकी दे रहा है। कशमाला फिरोज तो इसे कहती ज़ैकम की तरफ इशारा करने लगी। इसकी बीवी क्यों नाश्ता बनाएगी? महीने बाद ससुराल में काम करने आई है यहाँ। आज नाश्ता सबके लिए तुम बनाओगे। काफ़ी दिन अपनी हड्डियों को आराम दे लिया है, अब सीधा यहाँ से बावर्ची खाने में जाओ और सबके लिए नाश्ता बनाओ। खबरदार जो तुम निशानों की ज़रा भी हम मदद ली। ज़ैकम की गैर मौजूदगी और कशमाला की तबीयत ख़राबी की वजह से फिरोज जुतई ने चंद दिनों से इसका काफ़ी नरम रवैया रखा हुआ था, मगर इस वक्त वो कशमाला को सख्त लहजे में हुक्म देता हुआ बोला। कशमाला गुस्से में ज़ैकम और रुशाने को देखते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मेरा ये मतलब नहीं था कि रोशी यहाँ आए तो किसी काम को हाथ नहीं लगाए, मगर माँ जो लहजा अख्तियार करती हैं और जो उसके साथ सलूक करती हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा साईं, जाओ रोशी माँ के साथ नाश्ता बनाओ जाकर। ज़ैकम फिरोज जुतई को बोलता हुआ साथ ही रुशाने को किचन में जाने का इशारा करता हुआ बोला। अब की बार उसे यहाँ आकर खुद अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हफ्ते में 2 बार उसकी मरम्मत करता हूँ तभी ठीक रहती है। कोई ज़रूरत नहीं है इसे बावर्ची खाने में भेजने की। आज अपनी माँ को नाश्ता बनाने दो, उसका जो हल्का फुल्का बुखार रह गया खुद ही उतर जाएगा। फिरोज चौधरी ज़ैकम को कहता है उसके कमरे से बाहर निकल गया, जिस पर ज़ैकम अफसोस से सर हिलाने लगा जबकि रुशाने ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। साईं, ज़ैकम वॉशरूम का रुख करने लगा तभी रुशाने ने उसको पुकारा। वो मुस्कुराकर ज़ैकम के पास और उसके सीने से लगी। रुशाने को लगा वो रात वाली नाराज़गी ख़त्म कर चुका है जब भी उसके साथ ऐसी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम्हें किसने कहा मुझसे फ्री होने को? कल रात मेरी बोली हुई बात समझ में नहीं आई तुम्हें? ज़ैकम ने अपनी कमर पर बांधे हुए रुशाने के हाथ हटाकर उसे खुद से अलग करता हुआ बोला। रुशाने हैरत से उसे देखने लगी। रुशाने पर नज़र डालकर वॉशरूम में चला गया। अम्मी, क्या हुआ ज़ाले को? तैमूर खान अभी अभी बाहर से आया था तो उसे मुलाजिम से मालूम हुआ कि ज़ाले के लिए डॉक्टर को बुलवाया गया है। तभी वो हॉल में मौजूद ज़रीन से पूछने लगा। कुबरा खातून सरदार इस्माइल खान ज़रीन से वो माफ़ी मांग चुका था और वो तीनों ही उसे इकलौता होने की वजह से माफ़ कर चुके थे। बुखार की वजह से काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। अम्मा हजूर के हुक्म से डॉक्टर को यहीं बुलवा लिया है। ज़रीन तैमूर खान का जवाब देते हुए किचन का रुख करने लगी। डॉक्टर के अलावा और कमरे में कौन मौजूद है? तैमूर खान पेशानी पर बल लिया ज़रीन से दूसरा सवाल करने लगा। मैं ही मौजूद थी वहाँ, अभी अभी डॉक्टर के कहने पर आई हूँ ताकि ज़ाले को दवा दे सकूँ। ज़रीन के बताने पर वो माथे पर बल लिए ज़ाले के कमरे में दाखिल हुआ। हाथ छोड़ उसका। डॉक्टर बेड पर बैठी हुई ज़ाले की नब्ज़ चेक कर रहा था।
तैमूर खान कमरे के अंदर दाखिल होता हुआ डॉक्टर से बोला। डॉक्टर ने फौरन साले की कलाई छोड़ी, बेड के पास रखी हुई कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। खान में छोटी बीबी की नब्ज चेक कर रहा था। बीबी, हजूर के हुक्म पर ही यहाँ बुलवाया गया है मुझे, डॉक्टर तैमूर खान को अपनी सफाई देता हुआ बताने लगा। ऐसी क्या बीमारी होगी बीबी को जो इतने करीब बैठकर उसका इलाज का हो रहा है? तैमूर खान की बात सुनकर डॉक्टर शर्मिंदा हो गया। वहीं साले तैमूर खान को घूर कर देखने लगी। जब साले को स्टिचेस लगे थे तब भी वो साले के बिल्कुल करीब खड़ा था। तब भी डॉक्टर की वक्फे वक्फे से शामत आ रही थी। जी, वो कमजोरी की वजह से बीपी लो हो गया है बीबी जी का। मैं बीबी जी के लिए चंद दवाएं इस पर्चे पर लिख चुका हूँ। डॉक्टर एक बार फिर शर्मिंदा होता हुआ तैमूर खान को पर्चा दिखाने लगा। पर्चा जाकर बाहर नुशाद को दे दो और कमरे से जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। तैमूर खान के हुक्म पर डॉक्टर कमरे का दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। ये कौन सा तरीका है डॉक्टर से बात करने का? तुम्हें क्या लग रहा था, क्या कर रहा था वो डॉक्टर मेरे साथ? डॉक्टर के निकलने के साथ ही साले तैमूर खान को देखते हुए पूछने लगी। उसे नकाहत इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी कि वो अपने आप को उठने के काबिल भी नहीं समझ रही थी। मेरी चीज़ों को कोई देखे, छुए या फिर हाथ लगाए, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं। सीधी सी बात है, तुम्हें अब इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तैमूर खान कमरे का दरवाज़ा लॉक करता हुआ साले के पास आकर उसके जर चेहरे को देखता हुआ नरम लहजे में कहने लगा, तुम्हारी चीज़, अपना जुमला ठीक करो खान, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। साले उसे अपने करीब आधा देख कर बोली। चीज़ ना सही मगर मेरी तो होना। तैमूर खान बोलता हुआ उसके ऊपर झुक चुका था, जब जिसकी वजह से साले पीछे होकर बेड पर लेट चुकी थी। क्या कर रही है खान? तैमूर खान को अपने ऊपर झुका देखकर वो मुज़ाहमत भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। खान, आज तुम्हारा बीपी नॉर्मल करने वाला है अपने अंदाज में। तैमूर खान बोलता हुआ साले के होंठों पर झुक चुका था। सुबह का गुस्सा नाराज़गी भूलता हुआ वो साले के होंठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाता हुआ कुर्सी पर जा बैठा। साले उसके कारनामे पर अभी भी बेड पर लेटी हुई खामोशी से उसे देख रही थी, जबकि तैमूर खान बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठकर उसके इस तरह देखने पर मुस्कुराने लगा। शर्माना वरमाना नहीं आता तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह? साले के देखने पर तैमूर खान उसका चेहरा देखता हुआ नॉर्मल अंदाज में साले से पूछने लगा। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए खान, किसी बीमार को देखकर उसकी बीमारी का फ़ायदा उठाते हैं। वैसे अब तक कितनी लड़कियों की सही चीज़ और हरकत करके उन्हें शर्माने पर मजबूर कर चुकी है तुम? साले की शर्मिंदा करने पर वो कहकहा लगाकर जोर से था। ये स्पेशल ट्रीटमेंट है जो पहली बार खान ने किया है ताकि तुम्हारी तबीयत दुरुस्त हो सके। तैमूर खान आंख मारकर मैंने ख़ास लहजे में बोला। बदनाम गलियों में जाने वाले इंसान के मुंह से ये बात कुछ सच्ची नहीं लगती कि उसने पहली बार ऐसा किया होगा। जाले अभी तक बेड पर लेटी हुई थी। वह तैमूर खान पर भरपूर तंज़ी अंदाज में बोली। कोठे पर जाने वाले इंकशाफ का भी उसे रिशाने की ज़ुबानी मालूम हुआ था। जाले की बात सुनकर तैमूर खान के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो कुर्सी से उठकर जाले के पास आकर बेड पर बैठा और उसका हाथ थामता हुआ बोला, मैं अल्लाह और उसके हजूर को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मैंने वहाँ पर कभी किसी लड़की के साथ ना कुछ नाजायज़ किया है और ना ही किसी को छुआ है। तैमूर खान जाले का हाथ थामकर उसे अपना यकीन दिलाता हुआ बोला। जाले को तैमूर खान से लाख इख्तलाफात सही मगर उसे यकीन था, और अल्लाह और उसके रसूल की कभी झूठी कसम नहीं खा सकता। लड़कियों को नाचता हुआ देखकर कौन सा स्वाब मिलता है? मत जाया करो ऐसी बदनाम जगह पर। उन दोनों के निकाह के बाद से आज पहली बार जाले से नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। शायद अपनी तबीयत खराबी की वजह से उसमें एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी कि वह तैमूर खान से लड़ सके या इस पर गुस्सा कर सके। नहीं जाऊँगा, अब कभी भी नहीं जाऊँगा। बस तुम अच्छा सा नाचना सीख लो, जब दिल चाहेगा तुमसे ही कभी कभी फरमाइश कर लिया करूँगा। तैमूर खान इतना सीरियस होकर बोल रहा था, साले को समझ में नहीं आया वो मजाकन कह रहा है या फिर वाकई संजीदा है, मगर उसका दिल कह रहा था कि वो सच बोल रहा है। शराब जैसी घटिया चीज़ को भी मुंह लगाना छोड़ दो खान। जाले तैमूर खान को देखकर दोबारा बोले, जिस पर वो जाले को खामोशी से देखने लगा। तुम अपनी सारी शर्तें मनवा सकती हो अपने खान से। खुदा की कसम, हर बुरा काम छोड़ दूंगा, जो कहोगी मान लूंगा, बस अपनी मर्जी से अपने खान की दस्तरस में आ जाओ। तैमूर खान बोलते हुए एक बार फिर जाले पर झुका था। उसके होंठों का लमस अपनी गर्दन पर महसूस करके जाले की आंखों से आंसू रवां होने लगे। वो बगैर हिलजुल के किसी बेजान वजूद की तरह बेड पर लेटी हुई थी। तैमूर खान उसकी गर्दन पर झुककर उसके कुर्ब से मदहोश होता हुआ उसका दुपट्टा उतारकर जाले की कमीज के कंधों से नीचे सरकाता हुआ उसके शोल्डर पर होंठ रख चुका था। खान, पीछे हट जाओ प्लीज़। जाले बगैर किसी मज़ाहमत के लरजती हुई आवाज़ में बोले तो तैमूर खान उठकर बैठ गया और उसका आंसू से चेहरा देखकर हैरत से देखने लगा। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इसके बावजूद मेरी गुर्बत के लिए हर शर्त मानने के लिए तैयार हो। मैं तुमसे मोहब्बत करने के बावजूद तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकती, क्योंकि तुमने मेरी मोहब्बत की तजलील जिस अंदाज में की है, मैं चाहकर भी इसको भूल नहीं पा रही हूँ। चले जाओ मेरे कमरे से खान प्लीज़। जाले रोती हुई बोले तो तैमूर खान बगैर कोई दूसरी बात किए उसके कमरे से बाहर निकल गया। दोपहर तक हवेली में एक रोने का समा था। ज़ैकम की तीनों बहनें अपने शोहरों और बच्चों के साथ हवेली में मौजूद थी, और वह तीनों ही रोशाने से बहुत अच्छी तरह मिली। तवक्का के बरखिलाफ कशमाला काफ़ी खामोश थी। यकीनन फिरोज उदय ने उसे सख्ती से वार्निंग दी होगी। रोशाने इन सब के दरमियान अपने आप को बिल्कुल तनहा महसूस नहीं कर रही थी। उसे सिर्फ उलझन दिल अवैस के शोहर जावेद की नज़रों से हो रही थी, जो बहुत अजीब तरीके से उसे देख रहा था। मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद ही ज़ैकम ने उसे कमरे में जाकर आराम करने को कहा। शायद ज़ैकम उसकी उलझन फाहम किया था या फिर जावेद की नज़रों को। ज़ैकम मुझसे कल रात वाली बात पर अभी तक नाराज़ था, जब भी वो अपनी बहनों से हंसकर बात कर रहा था, मगर रोशाने की एक दो बातों का जवाब उसे नॉर्मल अंदाज में दिया था।
वो अलग बात थी, वो अपनी और रुशाने की नाराज़गी का किसी दूसरे को महसूस नहीं होने दे रहा था। रात में खाने के बाद सब वापस जा चुके थे। अब ड्राइंग रूम में सिर्फ शमशेर जतोई, फिरोज जतोई, कशमाला और ज़ैक़ा मौजूद थे। तो रुशाने सबके लिए कहवा बनाकर ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुई, तब कशमाला की आवाज़ उसके कान में पड़ी। तो फिर क्या सोचा है तूने पलवर शाह की नंद के बारे में? अपनी रजामंदी दे ताकि मैं पलवर शाह के ससुराल जाकर बाकायदा रिश्ते की बात कर सकूँ। वापिस शहर जाने से पहले ये मामला हल करके जाना है तुझे। कशमाला यकीनन ज़ैक़ा से मुखातिब होकर उसकी बात का मफहूम समझकर रुशाने के साथ हाथ में लर्जिश हुई। वो जो कशमाला की तरफ कहवा देना चाह रही थी, गर्म कहवा कशमाला के पाँव पर छलक पड़ा। हाय जिला दे इस बदबख्त ने मेरा बहू, अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कशमाला रुशाने को कोसने लगी। इससे पहले उठकर रुशाने की दुर्गत बनाते एकदम ज़ैक़ा सोफे से उठकर गुस्से में रुशाने के पास आया। कोई काम तुम्हें सीधा करना आता है कि नहीं? फ़ौरन जाओ अपने कमरे में। ज़ैक़ा रुशाने के हाथ में मौजूद कहवे की ट्रे को टेबल पर रखता हुआ रुशाने का बाजू पकड़कर उसे कमरे के दरवाजे तक लाया और कमरे से निकलने के लिए कहा। रुशाने तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बेडरूम में जा पहुंची। रुशाने को अंदाज़ा था ज़ैक़ा उस पर गुस्सा नहीं करता या कमरे से नहीं निकालता तो कशमाला को उसे मारने का जवाब मिल जाता। रुशाने ज़ैक़ा के बेडरूम में पहुंचकर उसके आने का इंतज़ार करने लगी। आज का दिन उसका काफ़ी मसरूफ़ गुजरा था। अपनी बहनों के साथ वक्त गुजारा कर उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। वो रुशाने से अभी तक कल वाली बात पर नाराज़ था। इसके बावजूद उसे कशमाला का रुशाने को हरासा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ज़ैक़ा जानता था परवरिश की नंद से रिश्ते वाली बात सुनकर रुशाने एकदम परेशान हो गई थी। इससे पहले कशमाला किसी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करती, ज़ैक़ा ने गुस्से का इजहार करके खुद इसे कमरे से निकाल दिया। रुशाने के वहाँ से जाने के बाद उसने साफ लफ्ज़ों में सबके सामने कशमाला को कह दिया था कि वो दूसरी शादी में दिलचस्पी नहीं रखता और रुशाने के साथ मुतमईन खुश है। इस वक्त ज़ैक़ा कशमाला के इसरार पर अपने कमरे में जाने के बजाय उसी के कमरे में मौजूद लैपटॉप पर मसरूफ़ था। तब उसके मोबाइल पर रुशाने का मैसेज आया। एक नज़र उसने सोते हुए कशमाला पर डालकर अपना मोबाइल उठाया। साईं प्लीज़ अपने कमरे में आएँ, ज़रूरी बात करनी है आपसे। ज़ैक़ा मैसेज पढ़ते ही लैपटॉप से तवज्जो हटाकर रुशाने को रिप्लाई करने लगा। खामोशी से चुप करके सो जाओ, मैं बिज़ी हूँ इस वक्त। रुशाने को मैसेज सेंड करके उसका ध्यान रुशाने की तरफ जा चुका था। अब उसका काम में दिल नहीं लगता, इसलिए वो लैपटॉप बंद करके कमरे में मौजूद बालकनी में खड़ा होकर स्मोकिंग करने लगा। न चाहते हुए भी रुशाने का मैसेज का इंतजार करने लगा। जैसे ही मैसेज टोन बजी तो मैसेज चेक करने लगा। साईं अगर आप कमरे में नहीं आए तो मैं सारी रात रोती रहूँगी। रुशाने का मैसेज पढ़कर ज़ैक़ा की भनवें तनी, मुझे तुम्हारे रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रोती रहो साजात। मैसेज सेंड करने के बाद 15 मिनट गुजर चुके थे मगर रुशाने का दोबारा मैसेज नहीं आया तो ज़ैक़ा को बेचैनी होने लगी। बेवकूफ़ लड़की, शायद रोने ही बैठ गई है सच में। वो बूट बढ़ाकर सिगरेट का टुकड़ा फेंकता हुआ सोती हुई कशमाला को नज़र डालकर कमरे से बाहर निकल गया। जब मेरे रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था तो क्यों आए फिर यहाँ? बेडरूम में ज़ैक़ा को दाखिल होता देखकर रुशाने कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई उससे शिकवा करने लगी, मगर वो खुश थी, इसका यकीन रहेगा नहीं गया। उसका साईं उसके बुलाने पर आ गया था। काम की बात करो जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। ज़ैक़ा उसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ संजीदा लहजे में बोला तो रुशाने चलती हुई उसके पास आई। मामी के सामने स्मोकिंग कर रहे थे आप, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अपना चेहरा ज़ैक़ा के चेहरे के नज़दीक लाती है, उसकी सांसों से उठती सिगरेट की खुशबू को महसूस करती बोली, काम की बात करो, क्यों बुलाया है मुझे? ज़ैक़ा दोबारा अपनी बात दोहराता हुआ बोला। शावर में लिपटी हुई अपनी बीवी को देखने लगा, जिसने अपने बालों को चुटिया के अंदाज में डबल डालकर एक तरफ कंधे से आगे किया हुआ था। काम की बात यह है कि मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी, कमरे में क्यों नहीं आ रहे थे आप? वो खफा सी ख़ास बीवियों वाले अंदाज में ज़ैक़ा से पूछने लगी। आदत डाल लो कभी कभी अकेले रहने की, क्योंकि जब दूसरी जगह दूसरी आ जाएगी तो अक्सर ऐसा हुआ करेगा। ज़ैक़ा ने जितनी संजीदगी ही जुमला अदा किया, रुशाने उसका घूर कर देखने लगी। एक बीवी पर गुजारा नहीं हो रहा आपका? वो बुरा मानती हुई ज़ैक़ा से पूछने लगी। मैं तो सादा सा बंदा हूँ, एक बीवी से सारी ज़िंदगी काम चला सकता हूँ, लेकिन अगर बीवी ही शौहर की चाहत की तलबगार न हो, उसे बिला वजह के नखरे दिखाए। ज़ैक़ा का जुमला भी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि अचानक रुशाने ने ज़ैक़ा के दोनों गालों पर अपने हाथ रखकर उसके होंठों पर बेहद आहिस्तगी से अपने गुलाबी होंठ रख दिए। वो ऐसा करके ज़ैक़ा को अपनी चाहत का बताना चाहती थी और साथ ही उसकी नाराज़गी भी दूर करना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ ज़ैक़ा रुशाने के इस इक़दाम पर अच्छा खासा हैरतज़दा हुआ था। शादी के 1 माह गुजरने के बावजूद उसने ये बेबाक मुज़ाहरा आज से पहले कभी नहीं किया था। रुशाने अपनी समझ पे अब खुद भी जिस जगह पीछे हटने लगी, तभी ज़ैक़ा ने उसके कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करते हुए दोबारा उसे खुद से नज़दीक किया। अब की बार वो रुशाने के होंठों को कैद कर चुका था। जब ज़ैक़ा की गिरफ्त में नरमी आई तो रुशाने उससे दूर हुई। फिर आगे क्या इरादा है? ज़ैक़ा मुझसे खुशगवार मूड में पूछने लगा, जबकि रुशाने झुकी हुई पलकों को उठाकर उसे देखने लगी। अब आप मामी के कमरे में वापस चले जाएं। रुशाने उसकी नाराज़गी ख़त्म कर चुकी थी, इसलिए मुस्कुराहट छुपाती हुई बोली, सच में चला जाऊँ वापस? ज़ैक़ा संजीदा होकर रुशाने से पूछने लगा तो रुशाने बेड की तरफ कदम बढ़ाते ही बेड पर जाकर बैठ गई। जाकर दिखाएं, रुशाने बोलते हुए अपने गिर लिपटी हुई शाल उतारकर एक तरफ रखी। उसे नाइटी में देखकर ज़ैक़ा ने मुस्कुराहट छुपाते हुए भरी में चुकाई। ये नाइटी ज़ैक़ा ही उसके लिए लेकर आया था, लेकिन उनका इस्तेमाल रुशाने ने आज पहली बार कर रही थी। रुशाने ज़ैक़ा को देखकर बालों में डाले चुटिया के बाल खोने लगी, जिस पर ज़ैक़ा जोर से हंसता हुआ उसके पास आया। सारे तरीके आते हैं तुम्हें नाराज़ शौहर को मनाने के। वो अपनी टी-शर्ट उतारकर रुशाने पर झुकता हुआ उसे पूछने लगा, मामी की शादी वाली शर्त पर आप उन्हें मना कर दीजिएगा साईं। वो बेड पर
पर लेटी हुई थी जैगम को अपने ऊपर झुकता हुआ देखकर संजीदगी से बोली। कशमाला की तरफ से उसे अजीब डर लगा रहता था। यार वो माँ है मेरी, उनको हुक्म तो नहीं डाल सकता। दूसरी वाली यहीं रहेगी हवेली में, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैकम से छेड़ने वाले अंदाज में बोला। मगर रुशाने बिल्कुल सीरियस होकर उसे दूर हटाती हुई खुद उठने की कोशिश करने लगी। यार 15 दिन तुम्हारे पास गुजार कर सिर्फ 2 दिन के लिए उस बेचारी के पास आया करूँगा। अब तो ठीक है ना। रुशाने को वापस लौटाता हुआ रुशाने का संजीदा चेहरा देखकर उसे बोला तो रुशाने की आंखों में नमी भरने लगी, जिसे छुपाने के लिए रुशाने ने अपने चेहरे का रुख तकिए की तरफ कर लिया। ओए मैं मजाक कर रहा था ऋषि, यहाँ देखो मेरी तरफ, तुम्हें लगता है तुम्हारा सही ऐसा कर सकता है? रुशाने का चेहरा धमकर उसका रुख अपनी तरफ करता हुआ पूछने लगा। तो ऐसा मजाक में भी मत बोलिएगा, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको किसी और के साथ देखकर। भले ही ज़िंदगी में मुझसे कितना ही खफा हो जाए, मगर ये जुल्म मुझ पर कभी मत कीजिएगा साईं। रुशाने बिल्कुल संजीदा हो गई थी। जैकब ने बारी बारी उसकी आंखों को चूमते हुए रुशाने को अपने हिसाब में कैद किया। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, तुम हमेशा मेरे पास रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी मुझसे दूर मत हो जाना। जैकब उसके कानों में सरगोशी करता उसकी गर्दन पर झुक चुका था। रुशाने ने इत्मीनान से अपनी आंखें बंद कर ली। वो खुद भला कहाँ से दूर रह सकती थी। किसी ख्याल के तहत रुशाने ने आंखें खोली। सामने बालकनी के बंद दरवाजे, खिड़की पर ढके पर्दे पर अपनी नज़र डाली। उसने कमरे में आने के बाद पहला काम ही ये किया था।